Tanya, your host for today, and I extend a heartwarming welcome to each and every one of you. I take immense pride and honor in welcoming our Honorable Minister, Shri Suresh Kumar Khanna, Cabinet Minister, Uttar Pradesh. Sir is currently serving as Cabinet Minister for Finance and Parliamentary Affairs, Uttar Pradesh. He represents the Shahjahanpur constituency of Uttar Pradesh. He has won 9 times MLA elections consecutively in his constituency. I would also like to welcome Honorable Minister Narendra Kumar Kashyap, Minister of State, Independent Charge, Uttar Pradesh. Sir is a Minister, Independent Charge of Backward Classes and Welfare. He has been a former member of the Parliament of India, representing Uttar Pradesh in the Rajya Sabha, the upper house of the Indian Parliament. And I'd also like to welcome Mr. Samir, IAS Special Secretary, Department of Finance, Government of Uttar Pradesh. We are privileged to have you among us today, and we thank you for taking time of your busy schedules to extend your support. As we commence, I would like to start the day by lighting of the lamp, and it's my honor to invite honorable ministers on stage to do the honors. We deeply appreciate their presence, marking the auspicious. Further about Mahakumbh, I would like to take a moment and showcase a video presentation put together by the government of Uttar Pradesh. So, I request you to press the button that is in front of you and the video presentation shall begin. The double-engine government is committed to ensure that the intangible cultural heritage of humanity, Mahakumbh 2025, must be a clean, safe and seamless event. A 3-tier public transportation system has been set up for a smooth and hassle-free travel of pilgrims and tourists at the world's largest spiritual gathering. The Uttar Pradesh State Transport Corporation will deploy more than 7,000 new buses, while the Indian Railways will operate 13,000 trains, including 3,000. Additionally, a comprehensive crowd management plan has been put in place, and multilingual announcements have been introduced for the convenience of visitors. Similarly, extensive arrangements have been made for the ease of tourists arriving by air. Come and be a part of this unparalleled spiritual journey that promises to offer you an experience of a lifetime. The intangible cultural heritage of humanity, Mahakumbh 2025.
कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में ये 13 जनवरी से होने वाला महाकुंभ वैश्विक स्तर पर ग्लोबली एक बहुत बड़ी पहचान को बनाने और बढ़ाने वाला इसलिए है कि इस महाकुंभ में लगभग ऑलमोस्ट 40 करोड़ लोग, 40 करोड़ श्रद्धालु आने वाले हैं। 13 जनवरी से शुरू होकर यह महाकुंभ जो 26 फरवरी तक चलेगा, 40 करोड़ लोगों का आना, 12 किलोमीटर में इसको विस्तारित रूप में व्यवस्थित करना और 1.5 लाख शौचालय हमारी सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, 1.5 लाख शौचालय, 10,000 सफाई कर्मी, 12 किलोमीटर में फैला हुआ मेला विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर एक बहुत बड़ी छाप छोड़ने वाला है। आप लोगों ने कल मीडिया के माध्यम से आपको जरूर सूचना मिली होगी कि कल के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रयागराज कल इस मेले के संदर्भ में कुछ विकास की योजनाओं को लोकार्पित करने के लिए गए थे। मेले के स्वरूप का, मेले के आकार का, मेले की सक्सेस का आपको आइडिया इस बात से हो जाएगा कि कल ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगभग 6,000 करोड़ रुपए की धनराशि से बहुत सारे विकास कार्यों को कल लोकार्पित किया है। कुंभ में आमंत्रित हैं और आपके माध्यम से कर्नाटक की समूची जनता को, सभी लोगों को हम आमंत्रित करने आए हैं कि आइए हमारे उत्तर प्रदेश की पवित्र धरा प्रयागराज के महाकुंभ में आप भी सहभागी होकर धर्म के कार्य में, संस्कृति के कार्य में अपनी सहभागिता निभाइए। हम उम्मीद करते हैं कि आप सबका आगमन प्रयागराज में होगा। महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, कैबिनेट और तमाम जो भी कर्नाटक के भाई बहन जिनकी आस्था, जिनकी रुचि धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों में होगी, वो भी सब प्रयागराज की भूमि पर आकर इस अनुष्ठान में अपनी सहभागिता निभाएंगे। हम आप सभी को आमंत्रण देने आए हैं। महामहिम राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी पूरी कैबिनेट तथा कर्नाटक के हर खास और आन को हम उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से आपको आज आमंत्रण देने आए हैं और विशेष रूप से आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं आज के इस सभागार में। बहनों और भाइयों, आप सब जानते हैं कि 12 वर्ष के बाद ये महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित होता है। 2019 में हमने कुंभ का आयोजन किया था बहुत सफलतापूर्वक। योगी सरकार में ही और मोदी जी के मार्गदर्शन में 2019 में इसका आयोजन हुआ था, जिसमें लगभग 22 से 24 करोड़ लोगों ने शिरकत की थी। कि ये जो यूनेस्को ने इसको नवाजा है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हमारे लिए
ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक पुरस्कार है जिस प्रकार से यूनेस्को ने हमको दिया है, मानवता की अमूर्त धरोहर। हम सब जानते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या है कि जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें कलश में से 4 स्थानों पर कुछ बूंदें गिरी थी, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज और हरिद्वार, जिसमें कुंभ और महाकुंभ का आयोजन किया जाता रहा है। ये हमारे लिए बहुत सुखद अनुभूति है। इसमें 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा, 45 दिन तक। इसमें 6 स्नान होंगे। ये विशेष रूप से पौष पूर्णिमा का 13/1/2025 को सोमवार को पहला स्नान, फिर शाही स्नान मकर संक्रांति के दिन 14/1/2025 मंगलवार को, तीसरा स्नान मौनी अमावस्या शाही स्नान 29/1/25 बुधवार को, चौथा स्नान बसंत पंचमी शाही स्नान 3 फरवरी 2025 सोमवार को, पांचवा स्नान माघी पूर्णिमा 12/2/25 बुधवार को तथा छठा स्नान महाशिवरात्रि 26/2/25 को। ये एक बहुत बड़ा आयोजन है जिसके माध्यम से हम अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को संजोए हुए उसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और ये पूरा स्नान नहीं, केवल डुबकी मात्र नहीं है, ये भारतवर्ष की अनेकता में एकता का शाश्वत समेकित जयघोष है। ये हमारे महाकुंभ के माध्यम से हम भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना को हम संजोए हुए हैं और खास तौर से एक भारत श्रेष्ठ भारत समावेशी भारत की दिव्य और जीवंत झांकी भी इसमें आपको देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश है माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से इसमें आग्रह भी है कि हम अपने हर आगंतुकों का भरपूर स्वागत सम्मान करें, उनको किसी प्रकार से असुविधा न होने दें और हर तरह से जो लोग यहाँ पर आए, जो हमारे लोग पधारे, उनका हम भरपूर सम्मान के साथ जो जिस उद्देश्य से आए उसकी हम पूर्ति करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।